What do you know about what is point? Anyone from your side? What do you know about the pointer? Stores address. Yes, Nitish. It can store address. It can store address. Very good. What is array? Collection of What? Collection of Later. collection of what? Variables. Variables. Okay. Any other? Derived It's not a collection of variables. Collection of data of similar data type. Right. The collection of homogeneous type of data or similar type of data. Okay. The pointer points towards the address. Right. वो तो हो चुका है ना. Pointer points to the address of a variable. और array क्या करता है? Array is storing the similar type of data. Now let's look at over here. Where is my pointer? Okay. What is pointer? Pointer points to the address of a variable or a data. Okay, and what is array? Array is nothing but collection of what is array? Array is nothing but a collection of similar type of data. Okay, so these are the basic definition of your pointer and array. Basically, array हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में इस तरह से वैल्यूज को स्टोर करते हैं. एम आई राइट? और फिर इसके जो भी वैल्यूज आप स्टोर करोगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर डिफाइनिंग, इसका सिंटैक्स क्या है, पहले सिंटैक्स बता देता हूँ. एरे सिंटैक्स किस तरह से होता है एरे का? इफ यू वांट टू डिफाइन अ कैरेक्टर टाइप ऑफ एरे, देन यू नीड टू राइट डेटा टाइप. ओके, कैरेक्टर एस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. ओके, एंड वैल्यू डिफाइन कर सकते हो आप इसके अंदर. लेट्स से इफ यू से सिपना, लेट्स से हेलो, लेट्स से ABC. So these are the three datas which we stored in that array. तो ये किस तरह से होगा? S I P N A, और फिर इसके बाद में आता है null character. Then we have H E L L O. Then we have null character. Then we have A B C. Then we have null character. In that fashion, we are able to store the data in a character type of array. अगर integer type of array आपने consider किया A of 2, so how much data you are able to store? 2 data is able to store. Let's say 12 and 13. So how it is going to be stored? Like this, 12, 13. Okay, so what this data type is represent in an array? It represent how much memory is reserved for the particular data type, okay, or particular variable. So when you are representing any array like this or like this, it will store the data in the array in this particular fashion. अब इसमें क्या होता है, इसमें इसका क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग किया जाता है. इसको कहते हैं स्केलिंग फैक्टर. ओके, इंडेक्सिंग किया जाता है. तो ये हो गया हमारे लिए A of 0 और ये हो गया हमारे लिए A of 1. ये पता है आपको? Yes, sir. ओके, Yes. ये हो गया हमारे लिए S of 0. हेलो हो गया हमारे लिए S of 1. ओके, एंड ABC हो गया हमारे लिए S of 2. दिस इज द व्हाट वी कॉल्ड एज इंडेक्सिंग ऑफ योर एरे. यहाँ तक किसी को डाउट? ये पता है सभी को? Yes, I sir. hope you are aware about these things. A of 0, A of 1 क्या होता है?
and every single memory location having their own address. For example, if this is contain 1000 as an initial address, then what will be the address of this next data or next index? क्या एड्रेस होगा इसका? It always be a 1000. 1. It's not 1001, it's 1002. Why? Because of the data type. When you define it as an integer require 2 byte of data to store the, it require 2 byte of memory to store the data. Character require 1 byte of data to store the Data. हाँ. तो अभी s of 0 में देखो, अगर ये 1100 है तो I के लिए 101 जाएगा, इधर 102, 103, 104. Okay, likewise 106, 107, 108, 109, 110. In that way, you are able to store the data and reserve the memory for the array. Array is basically nothing but an indirect pointer. It is nothing but the indirect pointer. When we increment the address, okay, it will increment the address depend upon the data type of your array. इंटीजर है तो 2 से इंक्रीमेंट करेगा, कैरेक्टर है तो 1 से इंक्रीमेंट करेगा, फ्लोट है तो 4 से इंक्रीमेंट करेगा. बट द स्केलिंग फैक्टर जो मैंने बोला है, स्केलिंग फैक्टर इज ऑलवेज बी अ 1. क्यों? क्योंकि a ऑफ 0 के बाद में a ऑफ 1 आता है, तो स्केलिंग फैक्टर हमेशा कितना रहेगा? उसका 1 रहेगा. ये याद रखना. ओके, though it increment by 2 their address because of this integer, but always scaling factor is 1. So memory is incremented by 1 and the address is incremented by 2. So scaling factor is always 1. तो एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन पे चले गए, मतलब स्केलिंग फैक्टर 1 हो गया और मेमोरी का जो एड्रेस इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है 2 से. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. हाँ, स्केलिंग फैक्टर क्या चीज है? स्केलिंग फैक्टर बताएगा कि कितने मेमोरी लोकेशंस हम इंक्रीमेंट किए हैं और आपका जो एड्रेस इंक्रीमेंट होगा वो एड्रेस इंक्रीमेंट होगा डिपेंड अपॉन द डेटा टाइप यू स्पेसिफाइड फॉर योर एरे. और अगर वो इंटीजर है तो 2 से इंक्रीमेंट होगा, कैरेक्टर है तो 1 से इंक्रीमेंट होगा, फ्लोट है तो 4 से इंक्रीमेंट होगा. नाउअडेज वी हैव 32 and 64 बिट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद अस. इसके लिए इंटीजर के लिए नाउअडेज 4 बाइट से इंक्रीमेंट होता है ना. कैरेक्टर के लिए हमारा 2 बाइट से इंक्रीमेंट होता है बिकॉज वी रिजर्व 2 बाइट फॉर कैरेक्टर, 4 बाइट फॉर इंटीजर. अगर 64 बिट है तो 8 बाइट से इंक्रीमेंट होगा. डिपेंड अपॉन द Size of the data type. yes, depend upon the size of the data type or depend upon the operating system. वो इंक्रीमेंट करेगा. Is it clear to everyone? This is the basic concept of your array. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, Okay. sir. So syntax is very simple. You have to specify a data type. Okay, then variable name, whatever name you want to define. Then opening square bracket, closing square bracket. This is the what we call as definition or declaration of your array. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कोई वैल्यू स्पेसिफाई भी कर सकते हो. अगर आपको स्टैटिक, आपको पता है कि 10 वेरिएबल ही रीड करना है, 20 वेरिएबल ही रीड करना है, स्टैटिक वैल्यूज अगर आपके पास में है, देन दैट पर्टिकुलर टाइम यू आर एबल टू डिफाइन द वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर स्क्वायर बॉक्स. इफ यू डिफाइन लाइक दिस a of 10, what it means कि only 10 memory locations are stored. Okay, so 10 memory locations ही आपके लिए assign होगी according to the scaling factor, and the address depend upon the data type. So if I define integer, then it should be 1000, 1002, 1004 like this. Yes, sir. 02, 10, 04, 1006, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. So this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and
Okay, so the scaling factor is this one. How many memory locations are there? Address is this one. Address increment by 2 because of this data type, and scaling is incremented depend upon the memory locations. So if you define 10, then 10 memory locations is assigned to you. अब 10 मेमोरी लोकेशंस आपको यूटिलाइज करना है तो आप करो, अगर नहीं करना है तो आप इससे कम भी मेमोरी लोकेशन यूटिलाइज कर सकते हो. दो यू डिफाइन इंटीजर ए ऑफ 10, बट अगर आप इसके अंदर जब वैल्यू इनिशियलाइज करते हो और अगर आपने सिर्फ 2 ही वैल्यू इनिशियलाइज कर दी तो क्या होगा? नो इशू, ये 2 वैल्यूज इनिशियलाइज कर देगा एंड देन इट अप्लाई द नल पॉइंटर ताकि आगे का एरे रीड ना हो जाए. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जब आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो एनी नंबर ऑफ वैल्यूज आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, और जब आप कोई नंबर असाइन करते हो तो आपको स्पेसिफिकली पता है कि इतने ही मेमोरी लोकेशंस लगने वाले हैं, तो आप उतने मेमोरी लोकेशंस को रिजर्व करके रखते हो बाय स्पेसिफाइंग द वैल्यू इन द पर्टिकुलर स्क्वायर ब्रैकेट while initializing the or while declaring the array. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. अभी पॉइंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा. सर हाँ बोला. सर वो इंडेक्स वैल्यू अगर अपन ने 10 डिक्लेयर किए तो फिर वो 0 to 9 ही जाएगा ना? हाँ बेटा 0 to 9 ही जाएगा. वहां पर लिख लिया होगा मैंने, कोई इशू नहीं है. ये यहाँ पे 10 गया, ये बोल रहे हो ना आप? यही क्वेश्चन है ना आपका? ये जो 10 गया है यहाँ Yes, तक sir. 0 to, अरे वो ना मैंने काउंट करके थोड़ी ना वो ये किया है, अभी ड्रॉ किया है उसको. वो तो ड्रॉ कर लिया, वो 10 तक चला गया. अब मैंने गिना नहीं था उसको कि एग्जैक्टली 10 पार्टीशंस हुए कि 11 पार्टीशंस हुए. वो 0 to 9 तक ही जाएगा. आपका सही है. क्लियर? यस सर. Indexing should be 0 to 9 and scaling should be 1 to 10, and address always be depend upon the data type which you specified. Now what is pointer? Pointer is a data type which used to store the address of data or any other variable. Okay, so syntax for pointer, you can need to write data type. Okay, star symbol and then variable name. This is and semicolon. This is the syntax to define your pointer. तो जनरली अगर आपको कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर चाहिए, यू जस्ट राइट कैरेक्टर स्टार ptr. अगर आपको इंटीजर टाइप का चाहिए तो इंटीजर स्टार ptr. अगर आपको फ्लोट टाइप का चाहिए तो इट इज ऑलवेज बी अ स्टार ptr. ओके, सो इन दैट वे यू आर एबल टू declare your variable. Is it clear? Pointer type of variable. Yes. Yes, sir. अभी ये Yes, sir. ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एरे तक तो शायद आपको आसान गया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड गया होगा. अभी मैं बता देता हूँ, वो चीजें याद रखो. एक एक करके सॉर्ट आउट करेंगे, फिर आपको क्लियर होते जाएगा. आप लिखते हो जनरली इंटीजर a इक्वल टू 2, और फिर आप लिखते हो इंटीजर स्टार ptr इज इक्वल्स टू स्टार ptr सेमीकोलन, then ptr is equals to ampersand of a. Okay, what it means? It means you are going to reserve a memory for variable a by using the first statement and assigning a value to that memory is 2. ये फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग है. समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड स्टेटमेंट क्या? हाँ, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? सेकंड स्टेटमेंट कहता है यू आर declaring a ptr type of variable which star का मीनिंग करता है कि it is a pointer type of variable. It means whatever the value hold by this variable is should be considered as an address. कोई भी वैल्यू इसके अंदर आप डालो, it will consider as an address. थर्ड क्या कहता है? ampersand of a means
एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, तो ये कोई ना कोई एड्रेस होगा इस पे 1000 हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं. दिस इज इमेजिनरी वैल्यू आई एम गोइंग टू कंसिडर ओवर हियर. सो 1000 इज द इमेजिनरी एड्रेस फॉर अस. अब हमने क्या किया, एम्परसेंट ऑफ ए यानी कि एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू पीटीआर, यानी कि पीटीआर में हमने वो 1000 स्टोर्ड कर लिया है. लेट्स से कि ये जो पीटीआर वेरिएबल है इसका एक एड्रेस है 2000, ये भी हमने इमेजिनरी कंसीडर किया है. क्लियर? जैसे ही आप इसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर करोगे, ये पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट करेगा टू द वेरिएबल ए. क्लियर? सो व्हेनेवर यू यूज प्रिंटफ स्टेटमेंट, तो अभी एक ये रिलेशन याद रखो हमेशा, स्टार पीटीआर पीटीआर एम्परसेंट ए ए, ये क्रॉस रिलेशन याद रखना. ओके, स्टार पीटीआर एंड ए is equivalent to each other and ampersand of a and ptr are equivalent to each other. This is very very important. इसको नोट करके रख, लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या चीज है. स्टार पीटीआर ए आर द सेम एंड एम्परसेंट एंड ए सॉरी पीटीआर आर द सेम. क्लियर? अब Yes, sir. कैसे कैसे सेम है ये भी बता देता हूँ कैसे सेम. Whenever printf statement, okay, whenever you use printf statement, printf, और आपने कहा %d और आपने कहा स्टार ptr और ptr, और एक और स्टेटमेंट हमने लिखा printf सेमीकोलन %d, ओके. देन हमने लिखा एम्परसेंट ऑफ ए सॉरी ए कॉमा एम्परसेंट ऑफ ए. नाउ इफ यू एग्जीक्यूट दिस टू स्टेटमेंट्स टुगेदर, सो स्टार पीटीआर क्या कहता है, स्टार पीटीआर यानी कि कहता है कि पीटीआर के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे एन एड्रेस, और उस एड्रेस पे जो डेटा हमारे पास में होगा उस डेटा को हम प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग स्टार पीटीआर. दैट्स व्हाई 2 इज गोइंग टू बी प्रिंट. व्हेन आई यूज पीटीआर, देन पीटीआर इज कंसिडर एज एन वेरिएबल. जब तक स्टार नहीं है तब तक पॉइंटर नहीं है, जब जैसे स्टार लगा वैसे पॉइंटर कंसिडर होगा, और जो वैल्यू है उसे हम कंसिडर करेंगे एड्रेस, और वहां पे जाके जो वैल्यू उसको प्रिंट करेंगे. दैट्स व्हाई स्टार पीटीआर प्रिंट्स 2, while ptr is going to print the value present in that variable. तो ptr के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, तो वैल्यू स्टोर्ड है 1000. Is it clear? And when we say %d a, तो a जैसे ही a करते तो हमें पता है कि a की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 2. एंड एम्परसेंट ऑफ ए कहते हैं तो हमें पता है कि एम्परसेंट ऑफ ए इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ ए, ये हमने पहले ही पढ़ा था, तो इट विल गोइंग टू प्रिंट 1000. दैट्स व्हाई आई से स्टार पीटीआर इज इक्विवेलेंट टू ए एंड योर पीटीआर इज इक्विवेलेंट टू एम्परसेंट ऑफ ए, जो हमने यहाँ पे रिलेशन में समझने की कोशिश की है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now the question is, how much is the size required to store the pointer variable? Size of PTR. साइज क्या होगी पीटीआर की? Depend on data type. डिपेंड ऑन डेटा टाइप, यानी कि यहाँ पे जो डेटा टाइप हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं उस डेटा टाइप पे आपका पॉइंटर वेरिएबल की जो साइज है वो डिपेंड होगी, ऐसा आपका कहना है? Yes, sir. ओके, एनी अदर आंसर फ्रॉम योर साइड? कोई दूसरा आंसर का आपको लगता है? आंसर किसने किया अभी?
Raksha. Okay. Any other answer? Nitish, Kalyani, Akash, Apurva, Arpit. Yes, Nitish. सर डेटा टाइप पे डिपेंड करेगा. डेटा टाइप पे डिपेंड करेगा. अथर्व. Sir, it depends on the word size. Word size. Okay. Any other? Let's see. Whenever we say that pointer variable is used to store the address, then the address in any computer or any system is fixed in size. Okay, fixed in size. It never gonna be change. कैरेक्टर के लिए एड्रेस अलग होगा, फ्लोट के लिए एड्रेस अलग होगा, ऐसा नहीं होगा. अगर आपके पास में कोई रैम मेमोरी है और उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया और हर एक का एक एड्रेस हमने स्पेसिफाइड किया, फॉर एग्जाम्पल 1000, 1002, 1003, सो द साइज ऑफ द एड्रेस इज सेम. तो एड्रेस देखो, ALP में आपने पढ़े होंगे कि आपके पास में दो टाइप की बस होती है, एक डेटा बस होती है और एक एड्रेस बस होती है. पढ़ा है आपने? यस सर. Yes, sir. हाँ, डेटाबेस बड़ी होती है कंपेरेटिव टू एड्रेस बस. डेटा बस क्या करता है? डेटा को फ्लो करके लेके जाता है. एड्रेस बस क्या करता है? एड्रेस को फ्लो करके लेके जाता है. पढ़ा है ना ये? Yes, sir. So the Yes, sir. address is fixed. Address is fixed. So whenever you say the size of the PTR, by default it is 2 byte for older version of operating system, older operating system. Size of PTR in modern days are 4 byte. Why 4 byte? 4 byte is nothing but 32 bits. Okay, so 32 bit operating system कहते हैं. तो generally what it means? It means that operating system uses 32 bit of address line. Huh? That's why it is called 32 bit operating system. 64 bit operating system होगा तो क्या size PTR print करेगा? 8 byte. 8 bit. Why? Because 8 byte is equivalent to 64 bits, and 64 bit operating system means this operating system uses 64 bit for address. Okay, 32 bit for address. That's why it is called 32 bit address. 32 bit operating system or 64 bit operating system. Older operating system by default उसका कितना था? 2 bytes. It means it uses 16 bits for address line. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. जितना बड़ा मेमोरी होगा उतना बड़ा उसका एड्रेस लाइन होगा. सो इट, अब ये कोई भी हो सकता है कि अच्छा हो सकता है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है स्टार PTR. हो सकता है कि आपने कैरेक्टर टाइप का एक स्टार PTR 1 किया है. बट व्हेनेवर यू प्रिंट द साइज ऑफ PTR and size of PTR 1, ओके, अगर आप साइज ऑफ PTR और PTR 1 को प्रिंट करोगे, सो इट शुड बी 4 byte अकॉर्डिंग टू द न्यू सिस्टम और 8 byte. 4 bytes or 8 bytes. Is it clear to everyone? Yes, sir. Now sir and ma'am जो भी प्रेजेंट है यहाँ पे, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि सर अगर इसकी साइज फिक्स है 4 byte और 8 byte और 2 byte, तो ये सर ये इंटीजर और एक कैरेक्टर क्यों लिखते हैं हम लोग? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इंटीजर एंड कैरेक्टर, और व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा टाइप फॉर द पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल? अब इंटीजर के हिसाब से तो आप उसका मेमोरी एलोकेशन या फिर उसकी साइज तो डिसाइड नहीं कर रहे, कैरेक्टर के हिसाब से तो नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पे तो एड्रेस इज ऑफ फिक्स है. फिर कैरेक्टर और इंटीजर लिखने की क्या जरूरत है? सोचा ऐसा कभी? क्यों जरूरत है इंटीजर और कैरेक्टर लिखने की? सर क्योंकि वो वेरिएबल डिफाइन करना है इसलिए. नहीं बेटा, ऐसा नहीं रहता है. इफ यू राइट कैरेक्टर टाइप ऑफ PTR और इसके अंदर हमने इंटीजर a इक्वल टू 2 करके इधर एम्परसेंट ऑफ a कर दिया, तो इसका तो एड्रेस लाइन कितना है? 4 byte का है. It doesn't have any problem to store the 4 byte of data into the PTR.
है ना, उसके पास में तो उतनी मेमोरी है जो 4 बाइट ऑफ एड्रेस लाइन को स्टोर कर सकती है। तो वेदर इट इज इंटीजर और कैरेक्टर, यहाँ पे डेटा स्टोर 2 बाइट में हुआ है, लेकिन एड्रेस इज ऑफ 4 बाइट, तो डेफिनेटली 4 बाइट इजीली स्टोर कर लेगा यहाँ पे। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. there should be no problem, there is no issue कि कैरेक्टर टाइप ऑफ पॉइंटर को इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल का एड्रेस हम लोग असाइन नहीं कर सकते, नो इशू, वो हो ही जाएगा। सर कैरेक्टर के फॉर्म में एड्रेस प्रिंट होगा? ना, ऐसा भी नहीं होता है। when you say star ptr, okay, when you say star ptr, what is the meaning of star ptr? star ptr क्या कहता है कि ptr वेरिएबल के अंदर जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को हम, और उस एड्रेस का यूज करके हम वो एड्रेस को पॉइंट आउट करेंगे, और उस एड्रेस पे कोई भी डेटा हो, चाहे वो कैरेक्टर हो चाहे वो इंटीजर हो, जो भी डेटा हो वो उसे हमें प्रिंट करना है, दैट्स इट। और वो प्रिंट करेगा डिपेंड अपॉन द फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर आपने %c किया है तो डेफिनेटली वहां पे जो डेटा होगा वो कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए, %d लिखा है तो वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, वो तो फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन करेगा। समजलं का काय बोलतोय मी तर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, now what is the use of integer and int ptr and character ptr? What is the difference between int and int star ptr and character star ptr? कोई एक जिसको पता है या जो गेस करना चाहता है तो यू आर अलाउड टू गेस इट, प्लीज। एटलीस्ट से डोंट नो, आई फुल्ली एग्री विद डोंट नो, कोई इशू नहीं है, नहीं पता सर है नहीं तो पता। अच्छा, बाकी लोगों को पता है फिर? No. नहीं सर। फिर बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे पता है नहीं पता है? चलो मैं बता देता हूँ आपको इसका एक्चुअल डिफरेंस, व्हाई वी राइट इंटीजर टाइप ऑफ, ओके, एंड व्हाई वी राइट कैरेक्टर टाइप। अब ना एक बात एक याद करते हैं, इंटीजर टाइप ऑफ ए और 2, और इसमें वैल्यूज देते हैं 10 and 12, ओके, और इंटीजर टाइप ऑफ स्टार ptr, then say ptr is equals to ampersand of a of 0, ऐसा भी लिख सकते हो, और you can simply write ampersand of a, no issue, and here I am going to character c of 10 and into सिग्मा हो गया, या फिर डायरेक्टली डबल कोट के अंदर सिग्मा पास कर दो, इट विल टेक इट एज अ input, and character star ptr1 is equals to ampersand of c. Now अगर मैं कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर को इंटीजर टाइप का एरे असाइन करूं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो क्या प्रॉब्लम होगा, और इंटीजर टाइप को इंटीजर और कैरेक्टर टाइप को कैरेक्टर टाइप असाइन करूं तो क्या होगा? सो अब ये कैरेक्टर टाइप टू कैरेक्टर टाइप हो गया। व्हेन आई से ptr प्लस प्लस एंड सॉरी ptr1 प्लस प्लस एंड हियर आई से ptr प्लस प्लस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? दिस ptr इज ऑफ इंटीजर टाइप and this ptr1 is of character type. Clear? Yes, sir. ptr1 कौन से टाइप का? कैरेक्टर। ये किसके टाइप का? इंटीजर। When I say ptr plus plus, because of it is integer type, it will increment the address by 2. Automatically it will increase the address by 2. Why? Because compiler knows integer type of value require 2 byte to store the data,
and when I say ptr11 of character type, ptr1 plus plus of character type, तो ये इंक्रीमेंट करेगा by 1 byte. Why? Because compiler knows that character require 1 byte to store the data. ओके तो जैसे ही ptr1 प्लस प्लस करूंगा तो यस के जगह पे ये नाउ पॉइंट आउट करेगा आई को. ओके वाइल अगर ये मैं इंटीजर ptr को असाइन करता हूँ ptr इज इक्वल टू m%c और यहाँ पे मैं करूँ ptr प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, इसका डेटा टाइप है इंटीजर, ये इसको 2 बाइट से इंक्रीमेंट कर देगा. सो इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आई, ये क्या करेगा, एस से आई को स्किप कर देगा, 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है ना, आई को स्किप कर देगा और पी को पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा. आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? यस सर. ptr प्लस प्लस 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि इसका डेटा टाइप इंटीजर है, और ptr1 ये 1 बाइट से इंक्रीमेंट हो रहा है बिकॉज इसका डेटा टाइप कैरेक्टर है. तो डेटा टाइप डिसाइड करेगा व्हेनेवर यू इंक्रीमेंट द एड्रेस, तो वो एड्रेस 1 बाइट से इंक्रीमेंट करना है कि 2 बाइट से इंक्रीमेंट करना है कि 4 बाइट से इंक्रीमेंट करना है. ये डेटा टाइप बताएगा कि विच टाइप ऑफ डेटा इज प्रेजेंट ऑन द एड्रेस लोकेशन. क्लियर? यस सर. एड्रेस लोकेशन पे कौन से टाइप का डेटा है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में a इज इक्वल्स टू, अब जैसे मैंने ये लिखा है 10 and 12, तो ये हो जाएगा a of 0 10 और ये हो जाएगा 12 a of 1, having 1000 एड्रेस एंड having 1002 एड्रेस. अब मैंने ptr1, ये है कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, और इसको हमने a की वैल्यू असाइन कर दी. इसका मतलब 1000 इज गोइंग टू स्टोर्ड इन द ptr1. तो किसको पॉइंट आउट करेगा, इसको पॉइंट आउट करेगा. व्हेन आई से ptr1 प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, इट विल इंक्रीमेंट इट बाय 1 क्योंकि कैरेक्टर टाइप का है. तो यहाँ पे पॉइंटर में कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, 1001. सो 1001 इज नॉट अ करेक्ट मेमोरी लोकेशन फॉर a of 1, है ना. तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा. वेयर एज अगर मैं इसे स्टार ptr कहूँ और %a कहूँ, तो जब मैं ptr प्लस प्लस करूंगा तो डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ ptr विच इज 1000 इज इंक्रीमेंट बाय 2 एंड इट इज नथिंग बट 1002. सो 1002 यानी कि करेक्ट मेमोरी लोकेशन को नाउ इट विल पॉइंट आउट. क्लियर द डिफरेंस? Yes, sir. सिर्फ अकेले को ही समझा कि आपको बाकी लोगों को नहीं समझा? नेक्स्ट इज योर null pointer. What is null pointer? Do you have any idea about null pointer? Yes, there is a pointer whose name is null pointer, present in a C. So do you have any idea regarding null pointer? No sir. Okay. What name null is suggesting? हाँ बोलो बेटा. Sir, null means nothing, right? So ये पॉइंटर क्या करेगा, नल करेगा, यानी कि सर वो कुछ भी पॉइंट नहीं करेगा. कुछ भी पॉइंट नहीं करेगा. Okay, let's see the definition of this. This is the definition of your null pointer. एक मिनट इसको क्लियर करने दो ताकि आपको. null pointer is a pointer which is pointing to nothing. It's called null pointer. Null pointer points to the base address of the segment, and pointer which is initialized with null value is considered as a null pointer. देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी लिए हैं कि integer star ptr and we assign null to this particular pointer. So whenever you assign a null, then this pointer is considered as a null pointer. Okay. So जब कभी भी आपको कोई पॉइंटर वेरिएबल को नल वैल्यू असाइन करते हुए दिखे तो आप क्या कहना उसको, इट इज अ नल पॉइंटर. नल इज अ माइक्रो कांस्टेंट डिफाइन इन द फॉलोइंग हेडर फाइल्स. अब ये जो नल पॉइंटर है इसकी वैल्यू नल ये मैक्रोज में डिफाइन हुई है, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू होगी
वंस यू असाइन अ नल यू आर नॉट एबल टू चेंज. ओके, एक तो फिर नल असाइन ही मत करो एंड इट विल पॉइंट टू द बेस एड्रेस. ये याद रखना है इसके बारे में. ओके, सो वेन एवर यू ट्राई टू put the output of this or put the value of print the value of this ptr, then it should always represented as a 0. so वो क्या डिफाइन कर रहा है? वो डिफाइन कर रहा है नल को. क्लियर? छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इजी जाएगा समझ Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज नथिंग बट अ नल पॉइंटर. आगे बढ़ेंगे. डैंगलिंग पॉइंटर. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट डैंगलिंग पॉइंटर? Oh, sir. हाँ, काय असते सांग. No, sir. नो. अच्छा, No, sir. डैंगलिंग पॉइंटर का भी डेफिनेशन पढ़ लो. क्या है? इफ एनी पॉइंटर इज, ये पूछा जाता है, पर ये पता होना चाहिए क्या होता है. तो पॉइंटिंग टू द मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल बट आफ्टर सम variable has after some time some variable has deleted from that memory location while pointer is still pointing to such memory location is such pointer is known as dangling pointer. यानी कि आपने एक स्टार ptr लिखा है और ये ptr में एक एड्रेस है 1000. ये 1000 a के लिए असाइन था. अब क्या किया हमने? ये वेरिएबल डिलीट कर दिया है. ओके, तो ये मेमोरी लोकेशन फ्री हो गई. यहाँ पे a वेरिएबल नहीं रहेगा, बट ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर के पास में एड्रेस है और ये पॉइंटर उसको पॉइंट आउट करते रहेगा. तो अगर ये a वेरिएबल डिलीट हो गया, दो इट इज डिलीटेड, स्टिल इट बिकॉज द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन इज प्रेजेंट इन द ptr, उसको पॉइंट आउट करते रहेगा. तो आप इसकी वैल्यू अगर प्रिंट आउट करने की कोशिश करोगे आफ्टर डिलीटिंग द वेरिएबल, इट विल प्रिंट द गार्बेज वैल्यू. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. डैंगलिंग किसे Yes, कहेंगे? A pointer pointing to the variable and the variable is deleted after some time. Still the pointer is pointing to the variable which is not available. Then that pointer is called as a dangling pointer. This one is the example of your dangling pointer. अब आपने क्या किया? आपने ये जो कॉल फंक्शन है वो फंक्शन ही आपने डायरेक्टली ptr को असाइन कर दिया. ओके, बस ड्यू टू दिस फ्लश, आप फ्लश करोगे, इसका मतलब जो भी वेरिएबल, जो भी फंक्शंस आपने लिखे हैं वो फ्लश हो जाएंगे. फ्लश हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये जो पॉइंटर वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल जिसको भी पॉइंट आउट कर रहा है वो वहां से डिलीट हो जाएगा एंड इट विल प्रिंट द गार्बेज वैल्यू. ओके, एंड पॉइंटिंग टू द such a memory location which is not available. This is the example of your dangling pointer. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So definitely it will print the garbage value because क्योंकि अब वहां पे क्या है, कौन सा वैल्यू स्टोर्ड है हमको पता नहीं, हमने फ्लश कर दिया है वो वैल्यूज को. बट एड्रेस इज नॉट चेंज. दैट्स व्हाई एड्रेस उसके पास में होने की वजह से वो एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा. वहां पे जो भी कुछ होगा वो फ्लश हुआ है, उसके वजह से garbage value print हो जाएगी. Next is your while pointer. Do you have any about while pointer? No, sir. Okay, it is very easy. A pointer in which in C which has not been initialized, है ना? मतलब आपने क्या किया है, उसको डिक्लेयर किया है, स्टार ptr डिक्लेयर हो गया है, बट इस स्टार ptr को हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यू असाइन करते हैं. वो वैल्यू अगर हमने असाइन नहीं किया, यानी कि उसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो ऐसे पॉइंटर्स को हम कहते हैं वाइल्ड पॉइंटर. कौन सा पॉइंटर? वाइल्ड पॉइंटर. Wild. वाइल्ड पॉइंटर. अब देखो ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे ptr नाम का एक वेरिएबल होगा जिसका कुछ मेमोरी लोकेशन होगा और इसमें क्या वैल्यू है हमें पता नहीं, क्योंकि हमने उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है. तो ऐसा जो पॉइंटर आपके पास में अवेलेबल होगा, दैट पॉइंटर इज कॉल्ड एज अ वाइल्ड पॉइंटर. सो व्हाट, अब देखो इस पॉइंटर के थ्रू हमने पॉइंटर का एड्रेस और उस एड्रेस पे प्रेजेंट होने वाला डेटा, स्टार ptr डेटा प्रिंट करता है और ये एड्रेस प्रिंट करता है. तो एड्रेस और डेटा प्रिंट करने की कोशिश की है, बट कोई वैल्यू इनिशियलाइज न होने की वजह से जो ओल्ड वैल्यू होगी उसी ओल्ड वैल्यू को क्या कंसिडर करेगा एज एन एड्रेस. वही ओल्ड वैल्यू एज एन एड्रेस करके प्रिंट होगा, वो हमारे लिए होगा गार्बेज वैल्यू. और उस एड्रेस के ऊपर जो कोई भी डेटा होगा वो भी हमारे लिए होगा गार्बेज वैल्यू.
So that's why garbage address and garbage value is printed. Yes, ये sir. एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपको समझना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज वाइल्ड पॉइंटर, व्हाट इज डैंगलिंग पॉइंटर, व्हाट इज नल पॉइंटर, इसके वजह से यहाँ पे लिखे क्लियर. सो आई थिंक यू क्लियर 3 न्यू कॉन्सेप्ट. नल पॉइंटर होता है, देन वी क्लियर कि डैंगलिंग पॉइंटर होता है, और हमें पता चला कि वाइल्ड पॉइंटर भी सी के अंदर होता है. ये इसका आंसर आप दे सकते हो. व्हाट इज द साइज ऑफ जेनेरिक पॉइंटर इन सी? Generic pointer in C, you can consider integer star ptr, you can consider character star ptr, you can consider float star ptr, any generic pointer. Undefined. Undefined. तो उसकी साइज क्या होगी? साइज मैंने अभी पढ़ा है आपको. 2 bytes. नल राइट. अरे बाबा 2 बाइट्स पढ़ाया मैंने अभी. सर लेकिन वो तो सिस्टम पे डिपेंड करता है. अरे बाबा मैंने क्या बताया आपको? थोड़ा सा हम पीछे जाए. इधर गया रे. मैं बताया था साइज ऑफ पीटीआर 2 बाइट लिखा है यहाँ पे. यस Yes, सर. Yes. हाँ, और फिर मैंने बोला था अगर 32 बिट ओएस के लिए पूछा गया है तो इट शुड बी 4 बाइट. 64 बिट ओएस होगा तो 8 8 बाइट. byte. बोला है ना. अब जब मैं ये बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है? ऑप्शन चेक करो आप, आपके पास में ऑप्शन भी गिवन है. सो यू हैव 0, 1, 2 नल एंड अनडिफाइंड. तो आपको यहाँ पे जेनेरिक बोला है. देयर इज नो नथिंग इज मेंशन लाइक 32 बिट्स और 64 बिट्स, ऐसा कहा है कहीं पे मेंशन नहीं है. जेनेरिक बोला है, तो जेनेरिक के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था साइज ऑफ PTR generic में जाएगा 2 bytes. So the answer of this question is 2 byte. Okay. If the question is asked like this, size of generic pointer in C for 32 bit system और 64 bit, अगर ये नहीं भी दिया है लेकिन ऑप्शन में 2 के जगह पे 4 दिया है तो you should go for the 4 byte instead of null and undefined. क्योंकि undefined कभी भी नहीं होता है, उस पर define होता है. Either 2 byte, 4 byte और 8 byte. 4 byte and 8 byte depend upon the system. Otherwise, you have to tick the answer 2. Is it clear? Yes, Yes sir. sir. यस सर. Yes sir. Parth, are you there? Parth? Now tell me the address. Okay. इसके पहले एक चीज और बतानी है. Star PTR, it is called pointer. And when you say star PTR, it is called pointer to pointer. Okay, when you say star PTR, तो आप क्या करोगे कि आप एड्रेस होल्ड कर सकते हो. किसका एड्रेस होल्ड कर सकते हो? पॉइंटर का एड्रेस होल्ड कर सकते हो. पॉइंटर क्या करता है? वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है. सो वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर के पास में होगा और पॉइंटर का एड्रेस पॉइंटर टू पॉइंटर के पास में होगा. क्या हम पॉइंटर टू पॉइंटर एड्रेस लिख सकते हैं? Yes sir. पॉइंटर टू पॉइंटर क्या हम ये मेंशन कर सकते हैं? आंसर इज यस, वी आर एबल टू मेंशन पॉइंटर टू पॉइंटर. इसके अलावा आप जितने चाहे उतने नंबर ऑफ स्टार्स लगा सकते हैं, जितने नंबर ऑफ एड्रेसेस आपको, जितने रेफरेंसेस के थ्रू एड्रेसेस आपको स्टोर करने हैं, उतने नंबर ऑफ स्टार्स आप अप्लाई कर दीजिए. यू विल फाइंड पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल. क्लियर? सो वैसे PTR is equals to ampersand of A and star PTR 1. So you just have to write PTR is equals to ampersand of PTR. So क्या होगा? Address of the PTR is going to store in the PTR1, which is nothing but pointer to pointer. So whenever you say star PTR, तो क्या होता है? एड्रेस ये क्या करेगा? इसके पास में जो डेटा है उस डेटा को कंसिडर करेगा, वहां पे जाएगा,
वहां पे जो डेटा है उसे भी कंसिडर करेगा एड्रेस, फिर मैं उस एड्रेस पे जाएगा और वहां पे जो डेटा है वो डेटा प्रिंट करेगा. सो स्टार स्टार प्रिंट रेफर टू रेफर डेटा. इज इट क्लियर? यस सर. हाँ, ये आई थिंक आसान है समझने के लिए. इसको नहीं समझा ऐसा कोई है? आदित्य कांबड़े समझ लगा? पॉइंटर टू पॉइंटर. हेलो. मतलब सर यस सर. हाँ बोल बेटा. सर मतलब स्टार पीटीआर और स्टार स्टार पीटीआर दोनों सेम ही वैल्यू प्रिंट करेंगे ना सर? हाँ, स्टार पीटीआर and star PTR will print the same value too. Okay, but when I say sorry, star PTR1 and star PTR, but when I say PTR1, तो PTR1 and PTR, तो ये different value change करेंगे. PTR1 print the address PTR and PTR print the address of variable. समझा? तो PTR1 किसका एड्रेस होल्ड करेगा? PTR का. PTR किसका एड्रेस होल्ड करेगा? वेरिएबल का. वेरिएबल में क्या है? वैल्यू है. सो वैल्यू को प्रिंट करना है तो यू जस्ट सिंपली से ए, तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा. या फिर कहो स्टार पीटीआर तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा. या फिर कहो स्टार स्टार PTR1 तो भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगा. व्हेन यू से एम्परसेंड ए तो ए का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा. व्हेन यू से PTR तो भी ए का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा. व्हेन यू से PTR1 तो PR का एड्रेस प्रिंट होगा. और अगर आप कहते हो स्टार PTR तो ए का एड्रेस प्रिंट होगा. स्टार PTR एक स्टार लगाओगे तो एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ ए. ओके, तो इसका रेफरेंसिंग कुछ इस तरह से है. ए 1000 PTR 1000 PTR1 3000. It contain 2, it contain 1000, it contain 2000. When I say A तो 2 प्रिंट होगा. When I say ampersand A 1000 प्रिंट होगा. When I say PTR के अंदर जो वैल्यू है 1000 वो प्रिंट होगी. When I say स्टार PTR तो ये एड्रेस होगा और एड्रेस का डेटा प्रिंट होगा यानी कि 2. When I say स्टार PTR तो ये होगा एड्रेस. इधर जाएंगे, इसको भी एड्रेस कंसिडर करेंगे, इधर जाएंगे और इसका डेटा प्रिंट होगा यानी कि 2. व्हेन आई से स्टार PTR तो यहाँ ये होगा एड्रेस, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो डेटा है वो प्रिंट होगा यानी कि 1000. और अगर आप करोगे PTR तो PTR1 1 and 1 PTR1 तो PTR1 पे जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा यानी कि 2000. क्लियर? यस सर. नाउ द क्वेश्चन इज दिस. इट इज अ पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल. अब बताओ इसका आउटपुट क्या आ सकता है? What will be the output of this program? नितीश यस सर. काय आउटपुट येणार बेटा? आंसर इज वेरी सिंपल. हाँ, 2 आएगा ना? का आई डोंट नो, मैं पूछ रहा हूँ. 2 आएगा. अभी आप 2 आएगा, सिर्फ 2 आएगा. हर बार 4 बार 2 आएगा. रक्षा? सर गार्बेज वैल्यू आएंगे क्योंकि ओके. पुट योर आंसर टू द चैट बॉक्स. आई वांट टू चेक ये आपको क्या लग रहा है. सर ये वाइल्ड पॉइंटर है ना? यस. पुट योर आंसर इनटू द चैट बॉक्स. बी फास्ट. आकाश से 2222. गुंजन, आपने यही क्वेश्चन का आंसर दिया है कि नहीं? 10:08 का आंसर दिया है. गार्बेज वैल्यू एनी अदर? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2222. व्हाई? दो इट इज अ वाइल्ड पॉइंटर. ओके, हियर यू द percentage is going to print the size of P1.
size of P2, size of Q1, size of Q2, and what I say कि size of a pointer is fixed. Okay, तो ऑप्शन में अगर 2 2 2 है तो 2 2 2 उसको टिक करो. अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शन ही नहीं है, 4 है तो 4 4 4 4 करो, अदर 8 8 8 करो. ओके, डिपेंड अपॉन द ऑप्शंस प्रेजेंट इन द क्वेश्चन आप उसका आंसर लिखोगे. समझा? यस सर. साइज पूछा है ना, साइज ऑफ अ पॉइंटर इज फिक्स. पॉइंटर वाइल्ड पॉइंटर है या डैंगलिंग पॉइंटर है या नल पॉइंटर है, वो देखने की जरूरत ही नहीं है फिलहाल हम लोगों को. इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. I Yes, hope sir. you will understand all those things which I cover. Yes. अभी लेक्चर का टाइम हो गया आप लोगों का. यू जस्ट गो एंड अटेंड योर लेक्चर. 1 मिनट रुको सिर्फ, हाँ, लेफ्ट मत करो. ठीक है, करो, लेफ्ट कर दो. ठीक है, हाँ, काय क्वेश्चन है का विचार? हाँ सर सर एक डाउट था, जो सर CLR SCR और गेट CS जो फंक्शन हाँ. है वो कोनियो डॉट एच में आते हैं कि stdio डॉट एच में कोनियो आएंगे? डॉट एच में आता है. इट इज कंसोल इनपुट आउटपुट. वेन एवर यू परफॉर्म एन ऑपरेशन रिलेटेड विद द कंसोल, ओके, वहां पे कोनियो डॉट एच फाइल यूज करनी होती है आप लोगों को. सर, थैंक यू. हाँ, सर जो पॉइंटर है वो अपन एरे का पूरा एरे का भी एड्रेस स्टोर कर सकते पॉइंटर. बिल्कुल कर सकते हैं. एक पॉइंटर फर्स्ट एड्रेस स्टोर कर लो, इंक्रीमेंट कर लो, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा और पूरा एरे आप एक्सेस कर सकते हो. ओके सर, थैंक यू. अच्छा, A++ करोगे तो भी आप इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1 से. एड्रेस ऑटोमेटिकली इंटीजर होगा तो 2 से इंक्रीमेंट होगा, कैरेक्टर टाइप होगा तो 1 से इंक्रीमेंट होगा. सो दैट्स व्हाई मैंने कहा कि इनडायरेक्ट पॉइंटर करके यूज किया जाता है एरे को भी. आज का समझा? यस सर. डिड यू गेट द न्यू Yes, sir. कॉन्सेप्ट? हाँ, कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़े. नल, वाइल्ड, डैंगलिंग, उनके एग्जांपल्स हमने dangling देखे. समझा हमने सर. देखा कि डैंगलिंग, अरे अभी तो बताया हमने कि डैंगलिंग क्या होता है. डैंगलिंग किसे कहेंगे हम लोग? कि आपने एक पॉइंटर वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी. ओके, मैंने कहा कि स्टार PTR इज इक्वल टू %a और a को मैंने फ्लश कर दिया. जैसे मैं a को फ्लश करूंगा तो वेरिएबल a इज डिलीटेड फ्रॉम द प्रोग्राम. एंड व्हेनेवर वी ट्राई टू एक्सेस द पॉइंटर वेरिएबल, अब वो पॉइंटर वेरिएबल किसे पॉइंट करेगा? डिलीटेड वेरिएबल को पॉइंट करेगा विच इज नॉट अवेलेबल इन अ प्रोग्राम. क्लियर? तो ऐसे पॉइंटर को हम कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर. वो ऐसे जगह पे पॉइंट आउट कर रहा है जहां पे कोई है ही नहीं. समझे? यस सर. उसको डैंगलिंग कहेंगे. अब सपोज करो कि आपके पास में आपके एक फ्रेंड का एड्रेस है और वो एड्रेस पर वो पहले रहता था, उसने वो रूम होगा या फिर जो भी एड्रेस होगा वो चेंज कर लिया और आपको पता है नहीं कि एड्रेस चेंज हो गया या फिर वो वहां से शिफ्ट हो गया. आपके पास में वो ओल्ड एड्रेस है, तो आप क्या करोगे? आपको तो लगेगा कि वो पर्टिकुलर एड्रेस पे रहता है करके अभी भी. बराबर? यस सर. तो आप कौन हो गए ये सिचुएशन में? नाउ यू आर द डैंगलिंग पॉइंटर. व्हाई? बिकॉज यू आर पॉइंटिंग टू द ओल्ड मेमोरी लोकेशन विच इज नॉट अवेलेबल. जब आप वहां पे जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? वो आदमी नहीं मिलेगा या फिर वो फ्रेंड नहीं मिलेगा, उसके जगह पे कोई और मिलेगा. तो वो हो गया हमारे लिए गार्बेज, क्योंकि उसका तो हमें कोई यूज नहीं है. सो दैट्स व्हाई गार्बेज वैल्यू और गार्बेज एड्रेस हो गया हमारे लिए वो. तो आप हो गए डैंगलिंग पॉइंटर विच होल्ड द गार्बेज एड्रेस एंड गार्बेज वैल्यू. इज इट क्लियर? यस सर. चलो, थैंक यू.